امریکن فلم انڈسٹری جو ہے ہالی ووڈ کی، وہ اس کو چینج کرتی ہے امیجز کو. ہم سائز زیرو پہ چلے جاتے ہیں، ماڈلس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یورپ میں ایک I'm آؤٹ I'm گئے. so sorry آپ کو کاٹنے کے لیے، لیکن ایکچولی وہ پچھلے ہفتے کا ٹاپک ہمارا یہ تھا بیوٹی یہ مجھے اسٹینڈرڈ. تو ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ ٹاپک ہے. اچھا آج نہیں، کا ہمارا ٹاپک آج کیا کا ہے؟ ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک ہے ویمن، خاتون کی آزادی اسلامی ملکوں میں. کرنا چاہیں گی اچھا ہم اچھا بھی اچھا. میں نے بات نہیں ابھی خاتون سنا. اسلام کی طرف. جی میرا خیال نہیں ہے اچھا اب کسی نے ہمارا مجھے ہمارا انہوں نے جو بھیجا. جی ہمارا نہیں لاسٹ بولو. ویک کا جو تھا نا وہ ٹاپک وہ تھا، اور اس کے بعد پھر حارث سلطان نے بھی ایک اسپیشل اسٹریم کی تھی، اور ہمارا پلان ہے کہ اس کا پارٹ 2 کرنے کا نا، وہ جو انفیئر بیوٹی اسٹینڈرڈز جو ہیں، تو اس کے اوپر ہم ہم ڈیفینیٹلی پارٹ جو 2 ہے رکھیں وہ گے. کریں گے، تو وی ول لیٹ یو لیکن نو what آن I would دیٹ. love to get your thoughts اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک خاتون ایک مذہب کے جو خاص طور اس کو اتنا سپریس کر کے اور اس کا اتنا مطلب دبا کے رکھتا ہے، کیوں ایک عورت خاتون اس مذہب میں رہتی ہے یا سوچتی نہیں ہے زیادہ اس کے بارے میں؟ یہ تو بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، اور بڑے عرصے سے میرے خیال میں اسٹریمز پہ بھی اور اسپیسیز پہ بھی چل رہی ہے کہ خواتین ایکچولی، ایک تو آپ کی انالیٹک، یہ بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں. ایک تو آپ پاکستان کی اگر صرف لیتے ہیں اور سب کانٹیننٹ کا حوالہ لیتے ہیں، کیونکہ اسی کے شاید تناظر میں بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جب تک آپ کے اندر آپ کی جو ایجوکیشن ہے، آپ کا جو تعلیم کا نظام ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اندر انالیٹیکل تھنکنگ پیدا کر سکے، اور آپ کو صرف ایک رٹا رٹایا جو موقف ہے وہی دیا جاتا ہے، اور آپ کو کبھی انکریج نہیں کیا جاتا کہ آپ اس سے بیونڈ جائیں اور پھر آپ اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ویئر یو بالکل آر. آپ کا جو ایک تعلیمی نظام ہے وہ ایک رٹے رٹائی سسٹم پر موجود ہے، اور کوئی بھی شخص اس کے اسکوپ سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سسٹم ہی اس کو جو ہے اس سے اکھاڑ باہر پھینکتا ہے. اور اسی لیے ہم پاکستان میں بہت زیادہ برین ڈرین دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جو برین ہے، برینی لوگ ہیں جو اچھے انالیسس کر سکتے ہیں یا جو سوچتے ہیں، وہ پاکستان کو بڑی تیزی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ برین ڈرین پچھلے کوئی 30 سال سے جاری ہے، اور اس کے بڑے برے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو سامنے سوال آتا ہے میری بہت ساری جو ایسے لوگ ہیں، ایسی خواتین جو پروفیشنلز ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں جو آلریڈی جو ہے وہ بایولوجی کو بڑا اچھا سمجھتی ہیں اور وہ سارا انہوں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے. اینڈ دین آپ کو ایسی خواتین میں میری جاننے والی ہیں جو انجینئرز ہیں، اور ایکچولی وہ مکینیکل انجینئرز بھی ہیں، اس میں الیکٹریکل انجینئرز بھی ہیں، پھر آپ کو فزسسٹ بھی ملتی ہیں، پھر اور وہ بھی ساری مذہب کو اسی طرح ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے جیسے آپ کو ایک لے پرسن اور ایک گھریلو خاتون جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے ملتی ہے. تو یہاں بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ خواتین اتنا پڑھ کر بھی جو ہے آپ مذہب کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مذہب نے ہمیں سارے حقوق دے دیے ہیں اور وہ کافی ہیں ہمارے لیے. تو یہ میرے خیال میں اگین میں نے ایک دفعہ یہ سوال اسپیسیز میں بھی اٹھایا تھا تو کسی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ بیسکلی یہ جو بھی لوگ ہیں یہ ٹیکنیشینس ہیں، دے آر ناٹ سائنٹسٹ. کیونکہ جو ایک سائنٹسٹ ہے اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ نہیں کرنا، یو ہیو ٹو گو بیونڈ اٹ. اس کی تھیری سمجھنی ہے، اس کا ہائپوتھیسس سمجھنا ہے، پھر اس کا ایکسپیریمنٹ سمجھنا. اور وہ بھی اس میں ہمیں پتہ ہے کہ 3 چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ ایک تو ریپیٹیبل ہونا چاہیے جو بھی ہے، کہ اس میں یہ کنسسٹنسی ایکسپیریمنٹس میں ہونی چاہیے کہ ایوری ٹائم اٹ پروڈیوسز دا سیم رزلٹ. ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی میتھڈالوجی یوز کی گئی ہے وہ بہت کلیئرلی آپ کے سامنے آتی ہو، آپ اس میتھڈالوجی کو کویشچن کر سکتے ہیں. اور جو ہے تیسرا ہے اس کی ریشنلٹی ہونی چاہیے. تو اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو آپ اس سائنٹیفک تھیری کو جو ہے وہ ویلڈ مانتے ہیں. اچھا پھر لیکن ہم اگین وہ اپنے سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک رٹا رٹایا موقف ملتا ہے اور ہم نے یہ جتنا بھی ریسرچ کا کام ہے یہ سارا گوروں کے لیے چھوڑ دیا. تو اسی لیے وہ ہمیں ٹیکنیشین برینس ملتے ہیں، وہ کویشچن کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ کویشچن کرتے ہیں ان کو سر تن سے جدا کی دھمکی ملتی ہے، وہ ویسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ کو وہ خواتین میں وہ بیسکلی جب پورا معاشرے آپ کو ڈپریس کر رہا ہے اور سپریس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں سوچنا، نہیں آگے جانا، اور یہ آپ کی جو حدود مقرر کر دی گئی ہے یہی ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہی ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ ایک کنٹینٹ لیول بھی ہے کہ ہاں بس یہ ٹھیک ہے، ہمیں معاشرے سے ویلیڈیشن مل رہی ہے
अगर हम मज़हबी हैं, हमने ये सब कुछ कर लिया है, तो हमें माशरे से वाह-वाह मिल रही है, वैलिडेशन मिल रही है, और चूँकि ख़वातीन बेचारियों को इतना दबा के रखा जाता है, वो लिटरली सेकंड ग्रेड सिटीज़न होती हैं, घरों में उनको अम, इतना जो है प्रेजुडिस है कि जब उनको थोड़ी-सी भी वैलिडेशन मज़हबी होने की वजह से मिल रही होती है, इम्पोर्टेंस मिल रही होती है, अगर वो अच्छी नात पढ़ती हैं या वो मजलिसें कराती हैं या वो अच्छी दुआ करा सकती हैं, सो दे ऑब्वियसली उनकी जो ईगो है वो बूस्ट होती है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, that gives them a good standing in the society. So मेरे ख्याल में multitudes of issues हैं यहाँ पर, बट अभी तो मैं यही कहूँगी, वरना ये एक बड़ी लंबी बहस है। या आई एग्री, बहुत लंबी है। अच्छा थैंक यू सो मच। और उसको ऑब्वियसली स्टॉकहोम सिंड्रोम भी मिला दें इसमें। रज़ा रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं और फिर एक और खातून आई है ऐश के नाम से, तो उनको भी लेंगे। रज़ा, आप बात करें। Assalamu alaikum. Good evening. Raza Rizvi from Houston, Texas. बहुत अच्छा कन्वर्सेशन मैं अभी तक सुन रहा था। मतिया से पुरानी वाकफियत है। उस्मान साहब ने बहुत अच्छा एक टॉपिक छेड़ा जो कि इट्स वेरी नियर एंड डियर टू माय हार्ट एज वेल, बीइंग अ फादर ऑफ अ टीनेजर or 13-year-old who's being raised by her religious mother, and she takes hijab. So that's something really bothers me because I feel that she's not being raised to being prepared for a world which is very heterogeneous, very diverse, and this is actually the strength of this society, that its diversity and its capacity to absorb people from different cultures, different backgrounds, bringing them together, give them the values of the freedom, justice, and then allow them the pursuit of happiness to pursue on their own terms, which is the beauty of the American dream. So this is something which I believe that we are doing as a disservice to our next generation if we are just raising them in a very रज़ा, small. आप उर्दू में बात कर सकेंगे प्लीज? इससे श्योर ताल्लुक श्योर श्योर, रखते हाँ, हैं। वो अगर अगर आप अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्ल को कल के सोसाइटी के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप उनको वो टूल्स नहीं दे रहे जिसके जरिए वो सोसाइटी में फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं और अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, बजाय इसके कि फॉलो अ path that you are preparing them. It's just like having this horse, एक घोड़ा जो चल रहा है और आपने उसकी कानों की साइड्स पे वो खोपे लगा दिए हैं, and he just have a tunnel vision of life. Life is such diverse. इस सोसाइटी में जब when you are exposed, जब हमें हमारी मुलाकात होती है दुनिया भर के लोगों से, तो हम देखते हैं कि नहीं, ये एक ही निजाम तो नहीं है जो दुनिया में चल रहा है। पाकिस्तान में होते हुए आपको ये सोचना भी नहीं पड़ता कि ये निजाम क्यों है। वो निजाम जो है वो बस चल रहा है और हर कोई उस पे चल रहा है। ठीक है? तो हम जो है सोशल एनिमल्स हैं, तो हमारी टेंडेंसी है कि वी ट्राई टू हैव पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। हम चाहते हैं कि माशरे में एक सुकून हो, अमन हो। तो पाकिस्तानी माशरा जो है बदकिस्मती से, चूंकि एक ईस्टर्न माशरा है, एक मशरकी माशरा है, और हिंदुस्तानी माशरे की तरह हमारी भी तरबियत इस बात पे होती है कि अच्छा शहरी कौन है? अच्छा शहरी वो है जो सवाल ना उठाए। अच्छा शहरी वो है जो केओस ना क्रिएट करे। अच्छा शहरी वो है जो सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल। तो हम हमारे हमारे यहाँ सवाल उठाने वाला तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो या ये एक बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये है कि मज़हब को लेकर मैं समझता हूँ कि मज़हब और साइंस के बारे में मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत नज़दीक हैं। इट्स वेरी नियर एंड डियर टू माय हार्ट। तो एक इस मामले में मैं कोट करूँगा कि डॉक्टर नील डीग्रास टायसन एक टॉप का लीडिंग साइंटिस्ट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है यूएस में, और सब उसको दुनिया जानती है। तो वो एक बात कहता है, वो ये कहता है कि दुनिया में अगर तुम एक आम माशरे में, अमेरिका का माशरा अगर आप ले लें, और आप 100 लोगों से सवाल करें कि तुम किसी खुदा पे यकीन रखते हो, तुम किसी मजहब को फॉलो करते हो, तो उन 100 में से तकरीबन 87 अमेरिका में लोग कहेंगे कि हाँ, वी बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन और फेथ। अच्छा, ये जब आप साइंटिस्ट में लोगों में आते हैं तो ये तादाद जो है 87 से घट के रह जाती है, ये अबाउट 40%। ठीक है? अच्छा, इन साइंटिस्टों में भी फिर आप टॉप के साइंटिस्ट अगर ढूंढें जिनके रिसर्च पेपर्स, एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स किसी लीडिंग जर्नल में शाये होते हैं, पब्लिश होते हैं हर साल, और दे आर द मेंबर्स ऑफ द अमेरिकन बॉडी ऑफ साइंस। ठीक है? अमेरिका के जो टॉप साइंटिस्ट हैं,
उनमें अगर आप ये रेशियो ढूंढेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे only 7% of the leading scientists identify with certain organized religion. ठीक है, तो 93% जो है वो दे आर फाइन, दे आर डॉगमा फ्री, दे आर एथियस्ट, एग्नोस्टिक, skeptical, whatever, but they don't identify with an organized religion. But there is still 7%. ठीक है, तो नील डिग्रास टाइसन ये कहता है कि इससे पहले कि हम किसी आम आदमी से पूछें कि भाई तुम क्यों मजहब को फॉलो करते हो, हैं, वो कहता है कि ये जो 7% जो दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान है, ये इनका सुराग लगाओ कि ये क्यों बिलीव करते हैं किसी रिलीजन पे या खुदा पे। तो वो कहता है कि हमें किसी आम आदमी से सवाल करने की का हक ही नहीं है अंटिल हम ये फाइंड करें कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस, holding two ideas in your head at the same time, believing in the scientific discovery of method and the truth. One second, it's in the guest. जी रजा की मैं बात को अच्छा जी बिल्कुल सॉरी, तो ये जो बात है ना, ये एक होल्डिंग, मैं इसको इस तरह से समझ सकता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम इंसान जो है दुनिया को देखते हैं दो तरीकों से। एक देखते हैं हम एक नेचुरल वर्ल्ड है जिसपे फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हैं, जिसपे जो है वो सब कुछ जो है वो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से चल रहा है दुनिया में। और एक मैं अगर जस्टिफाई करना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है, यानी कि एक वर्ल्ड है जो कि पीछे चल रही है, जो बैकग्राउंड में है, और उसका जो निज़ाम है वो हमसे अलग है, वो एक और डिमेंशन है जिससे हम 3D डिमेंशनल इंसान इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना वो इंसानों ने अपने आप को समझाई हुई हैं, क्योंकि द हैविंग अ पिक्चर लाइक अ बिग पिक्चर ऑफ दिस होल थिंग इट्स सच विद सच अ कॉम्प्लेक्स नोशन के ये इंसान की टेंडेंसी है कि वो कहानियों के जरिए दुनिया को समझ सकता है। हम बचपन से अगर आपको याद हो तो बच्चे जो हैं वो कहानियों में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको वो कहानियां कुछ समझाती हैं, उनको समझाती हैं कि लोग कैसे काम करते हैं, दुनिया कैसे काम करती है। दे गिव हिम इन विजुअल एक्सप्लेनेशन, विजुअल मॉडल, देयर सम मैसेज। तो ह्यूमन टेंडेंसी जो है ना वो इट्स एक्चुअली इवॉल्व्ड, हैज इवॉल्व्ड, ह्यूमन ब्रेन हैज इवॉल्व्ड टू बिलीव इन स्टोरीज। ठीक है, और जो स्टोरियां बचपन से आप सुनते हैं उनमें से आधे से ज्यादा आप प्रोसेस ही नहीं करते क्योंकि वालिदैन से सुनी होती हैं, तो आप जस्ट फैसिनेट हो जाते हैं। वाह, अपने दिमाग में एक जो भी आपको बताया जा रहा है आप एक एक अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं, यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद इट। अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये है कि ये एक प्रूवन थिंग कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो दिमाग के जिस हिस्से में रहती है, उसी ब्रेन के उसी दिमाग के हिस्से में हमारा फेथ, जिन चीजों को हम जो हमारी कोर आइडेंटिटी बनाती है वो भी वहीं पे रहती है। ठीक है, तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि दे एक्चुअली एसोसिएट देयर आइडेंटिटी, which is identity is again a collection of stories, which some of which we have been told, some of them which we have created for ourselves based on our experience and interpretation of this world. तो उस कहानी पे अगर कोई सवाल उठाता है, उस कहानी की हकीकत पे कोई अगर उंगली उठाता है या पॉइंट आउट करता है कि ये तुम्हारी स्टोरी में ये बबल नजर आ रहा है मुझे, तो when somebody is trying to poke that bubble, you is feeling like your bubble, your identity, your surrounding, your whole existence are at threat. So most people do not take this thing at an analytical value, they identify it with an emotional value. इस सवाल के साथ वो लॉजिक के साथ सोचना बहुत मुश्किल है, इमोशन से इंसान पहले उस पे अमल करता है। अच्छा, फिर ये जो वुमेन के साथ रिलीजन वाली बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे एक दोस्त हैं न्यूयॉर्क में होते हैं, जिनकी 4 बहनें हैं और ये लोग 2 भाई हैं, और वो हैं जो सोचते हैं और समझते हैं और वो अपनी बहनों को भी समझाते हैं, लेकिन उनकी एटलीस्ट 3 बहनें जो हैं वो काफी मजहबी हैं। तो वो मुझसे कहते हैं कि यार रजा, मुझे इस सवाल का जवाब दो कि यार व्हाई द वुमेन एक्चुअली डोंट सी दैट कि दिस इज अ डिससर्विस टू देमसेल्फ, व्हाई कैन नॉट दे हाउ डू दे फाइंड कंफर्ट इन दिस थिंग। तो इस पे मेरे काफी सैर बहस गुफ्तगू हुई है हमारे 2-3 दोस्त जो साइकियाट्रिस्ट भी हैं और फिलोसफर्स भी हैं उनके साथ। तो हम लोग कुछ इन कॉमन नतीजों पे पहुंचे हैं कि ये एक से ज्यादा इशू है, अगेन उसमें स्टॉकहोम सिंड्रोम बहुत बड़ा है इशू। सेकंड थिंग है आइडेंटिटी वाली बात है कि हर चीज जो है वो आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट हो जाती है। तीसरी बात मैं ये समझता हूँ कि औरतें जो हैं वो हमारे कल्चर में, ईस्टर्न कल्चर्स में और इवन इन द अदर कल्चर्स,
the women are supposed to be the custodian of the cultural heritage. जो हमारा सकाफती विरसा है, जो हमें अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल करना होता है, वो औरत की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की तरबियत करे. बाप को तो हमारे माशरे में अक्सर ये भी नहीं पता होता कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है. ये हकीकत है कि ये हमारे दोस्तों के साथ बहुत इस पे डिस्कशन हुए कि यार हमारे फादर को मोस्ट लाइकली दे वुडंट नो कि हम कौन सी क्लास में हैं. उनको पता है कि बच्चा बस स्कूल जाता है और बच्चे को जो है ना खाना माँ दे देती है और वो होमवर्क कर लेता है और वगैरह उम्र वगैरह. भी नहीं पता होती कुछ वालिदों को. Oh yeah, yeah, big time, big time. तो जब आपने मजहब को और कल्चर को मिक्सअप कर दिया, तो ये जो चीज जो विरसा मुंतकिल कर रहे हैं अगली नस्ल को, ये माँ की जिम्मेदारी है कि कितना अच्छा सिखाया उसने बच्चे को. ये सारी चीजें लोग उस पर बड़ा प्राइड लेते हैं, स्पेशली ग्रैंड फादर वगैरह बड़े खुश होते हैं, बहुत तारीफ होती है कि माशाल्लाह क्या तरबियत की है बच्चों की. हाँ बिल्कुल हमारे तौर तरीके, जिस तरह से हम 100 साल पहले उठते बैठते चलते फिरते आ रहे थे हिंदुस्तान में या कहीं और पाकिस्तान में, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी. बेटा तुम बच्चे कितने अच्छे लगते हैं शलवार कमीज पहनते हुए. अरे भाई ये सारी चीजें जो है ना ये सोसाइटी के हिसाब से होती हैं. इंसान जिस सोसाइटी में रहता है, जिसमें उठता है बैठता है काम करता है, उसके हिसाब से उठता है चलता फिरता बैठता है. और एक सोसाइटी का कल्चर एक दूसरी सोसाइटी से कैसे बेहतर हो सकता है? कल्चर सारे इंसानों के बनाए हुए हैं और इंसान जो है वो सीखते आए हैं अपने अर्तकाई सफर से. तो कुछ चीजें जो काम करती थी उनको रखा, जो नहीं करती थी उनको डिस्कार्ड कर दिया. वक्त के साथ साथ चीजें बदली, जिंदगी आसान हुई तो सोचने को भी मौका मिला. तो हमारे जो लोग हैं वो कल्चर को मिक्सअप करते हैं. मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ कि मेरा ताल्लुक अपनी जाती मिसाल देता हूँ मैं. अच्छा रज़ा, I'm so sorry, आप जल्दी से रैप अप करें क्योंकि हमारे पास 2 भी और खातून हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं. सो प्लीज फटाफट रैप अप कर लें एंड देन ठीक यू है कैन ठीक स्पीक है. ऑन. ओके एक्चुअली हाँ, सो I'll wrap it up very quick. I'm from a शिया फैमिली बैकग्राउंड और हमारे शियों में जो है मुहर्रम को लेके आजादारी को लेके कल्चर की बहुत ज्यादा रिचुअल्स हैं. और ये देखा गया है कि लोग जो मेन थियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते वो भी इन कल्चरल रिचुअल से किसी ना किसी तरह से वाबस्ता रहते हैं, स्पेशली खवातीन. अच्छा फिर अगेन वही वाली बात है कि चूंकि वो कस्टोडियन समझती हैं अपने आप को कल्चर का, तो वो सारी चीजें अपनी नस्ल को सिखाती हैं कि ये हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है, दिस इज हाउ वी हैव बीन डूइंग थिंग्स ऑल दिस टाइम. दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगा मेरा अपना एक्सपीरियंस खवातीन की मूवमेंट के हवाले से और खवातीन के राइट्स के हवाले से. आई हैव बीन टू ईरान ट्वाइस माई सेल्फ, 1993 और 1995 में. एंड ड्यूरिंग वन ऑफ दोस ट्रिप वी हैड दिस एक्सपीरियंस कि हमारे साथ जो है पाकिस्तान से खातून गई थी और वो ज़ियारत करने बाहर निकली थी. तो शी वाज एक्चुअली बीन हरास्ड बाय दिस मॉरल सो कॉल्ड मॉरल पुलिस इन ईरान. उनका आके जो है वो डंडे से उनका जो है ना आगे के उनके बाल नजर आ रहे थे. स्कार्फ उन्होंने लिया हुआ था लेकिन सामने के बाल जो थे ना वो नजर आ रहे थे. तो ऐसे वो आके कांस्टेबल जो है वो डंडे से करती है, सर पे मारती है, कहती है खानम जुल्फ जुल्फ अंदर करो. एंड शी वाज सो शॉक्ड बाय दैट. मास्टर ठीक है. जिनामीनी की तरह बिल्कुल शुरुआत हुई इसकी. या Yeah, it was something was very shocking for us even coming from Pakistan, इतना ज्यादा. फिर वहां पे इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा कड़ा पैरा है कि जो रोजों में ज़ियारत करने लोग जाते हैं उनमें आधे से ज्यादा जो लोग स्टाफ में होते हैं और वो होते हैं दे आर ऑल द स्पाइज, दे वर्क फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसी. तो हमारा खुद भी जो है 2 दफा इंटरोगेशन हुई क्योंकि हम लोग रात को 12:30 बजे तक बाहर बैठे रहते रोज. तो वैसे इस तरह की सख्ती है, मतलब इट्स सच अ आयरन कर्टन, लाइक इट्स अ वेरी टाइटली कंट्रोल्ड स्टेट. ये सिर्फ लड़कियों के लिए मॉरल पॉलिसिंग है, ये सिर्फ ये औरतों पे ही मेहरबानी है, मर्दों के लिए भी कुछ है? मर्दों के लिए कोई खास नहीं है क्योंकि मर्द जो है वो बहरहाल मर्दों का जो ड्रेस कोड है वो इस्लाम में आपको पता है वो फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं है. और सच है हिपोक्रेसी कि आप खुद तो शॉर्ट्स में भी घूम सकते हैं और औरतों को जो है दे हैव टू बी इन द सैक. दूसरा आई अंडरस्टैंड द शिया पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज मेरी जो बीवी हैं वो शिया हैं और मेरे इन लॉज जो हैं वो सैयद हैं, शियाज हैं. सो मैं भी एक दफा अपनी सास के साथ जो है वो ईरान का चक्कर लगाया था मोहब्बत में. तो आई ट्रूली वो उस आज तक मैंने अपनी सास को इतना बंडल अप नहीं देखा.
I mean, she wore jeans and shirts and everything. लेकिन जब वो ईरान गई थी तो वो ऐसे खतरा उन्हें लगा हुआ था कि पता नहीं कोई कत्ल कर देगा अगर कहीं से कुछ स्किन नजर आ गई. So I truly understand आप क्या कह रहे हो. Yeah, मैं it's रजा very की sad. बात में थोड़ा सा ऐड करूं, जब ये कह रहे थे कि वो रिसर्च हुई और जितनी भी परसेंटेज थी लोगों ने कहा उनका किसी ना किसी रिलीजन से एसोसिएट करते हैं. अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन में भी लोगों से पूछेंगे कि उनकी रिलीजन की डेफिनेशन क्या है, तो वो हर इंसान की एक डिफरेंट डेफिनेशन होगी. तो एक रिलीजन में भी लोगों की कंसेंसस नहीं है. कोई कहता है अच्छा मैं इस पे नहीं बिलीव करता, मैं इस पे नहीं करता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता. तो रिलीजन के अंदर भी इतनी वैरायटी है, हर बंदे ने अपनी अपनी बिल्कुल जो उनकी समझ के मुताबिक उन्होंने उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन. यू कैन नॉट दो लोगों को आप एक पॉइंट पे भी इकट्ठा नहीं कर सकते. बिल्कुल या Thank you. अच्छा, लेट्स can टेक we hear from अ Ash फीमेल now? गेस्ट. Sorry, Ash हमारे साथ जुड़ी हैं. Ash, the floor is yours. Ash, आप बात कर सकती हैं. Okay, I'm not sure Ash के माइक के साथ क्या हो रहा है, लेकिन Ash, जब भी आपका माइक जुड़ जाए या जब भी आप वापस आ जाएं, आप बात कर सकती हैं. यंग एथियस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं. यंग एथियस्ट, आप बात करें.